Hello students and welcome again to my channel. So students, today we will solve the numerical problems regarding Kirchhoff's laws and Wheatstone bridge. ठीक है, so first ਆਪਾਂ numerical करांगे. पहला numerical की है अपने को 3 cells are connected in parallel with their like poles connected together with wires of negligible resistance. ठीक है, तो negligible resistance ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਦਾ EMF ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ ਆਰ 2 1 ਐਂਡ 4 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋ EMF ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 1 ਤੇ 4 ਵੋਲਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, and their internal resistances are 4 3 and 2 ohm respectively। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਆ 4 ohm। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੀ 3 ohm ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 2 ohm ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਈਚ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਸਟ ਵਿੱਚ I1, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ I2 ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ I3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ I1 I2 ਤੇ I3 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਲੂਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋ A B C D A ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ A D E F A। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 2 ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ EMF ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, EMF ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ EMF ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ EMF ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਸਟ ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ A B C D A ਲੂਪ। ਫਸਟ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ CB ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I1 ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 4 ohm ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ I1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਇਨਟੂ ਨਾਲ 4 ohm ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ AD ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। I2 ਇਨਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਆਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ 3 ohm ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ EMF। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ EMF ਹੈ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 4I1 ਮਾਈਨਸ 3I2 ਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲੂਪ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੂਪ A D E F A। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲੂਪ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਗਈ A D E F A ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਰਚੌਫ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। I2 ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ 3 ohm ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, I2 ਇਨਟੂ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ I3 ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ 2 ohm ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ I3 ਇਨਟੂ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ EMF ਆ 1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਆ ਉਹ 4 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ।
ये -4 लवांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को इक्वेशन की बन जूगी 3i2 - 2i3 इज इक्वल टू -3। इनू आप क्वेश्चन नंबर 2 अज्यूम कर लांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी समझ लग गई अपने को। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो क्वेश्चनस अपने को बन रही हैं ਤੇ ਦੋਨਾਂ क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ i1 i2 ਤੇ i3 ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤਿੰਨ क्वेश्चनस ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਐਸ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये अपने को जंक्शन जड़ा इत्थे तिन्ने करंट आके मीट करते पे आ। ठीक है, तो ये आप जड़ा एक साइन कन्वेंशन इहदी लई सी भी जिथे अपने को करंट जिस जंक्शन के वल आ रहा होवे ते उहनूं आपां करंट नूं पॉजिटिव लैना है ते जे जंक्शन तो परे जा रहा होवे ते उहनूं आपां नैगेटिव लैना है। सो तिन्ने करंट जिहड़े आ वो इस ए पॉइंट वल आ रहे हैं, इस करके तिन्ने करंट की लवांगे पॉजिटिव लवांगे ते अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's first law the algebraic sum of all the current meeting at a point is always equal to 0। so ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਆ at junction A ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ i1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ i2 प्लस i3 ये की आ जाऊगी नैगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये i1 की वैल्यू हुण आपां इत्थे सबस्टिट्यूट कर दांगे 1 दे विच। फ्रॉम 1 i1 की वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट करो 4 टाइम्स i1 आ गया माइनस i2 प्लस i3 -3i2 इज इक्वल टू 1। इन्हू सॉल्व कर लो -4i2 -4i3 ते -3i2 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो माइनस का 4i2 ते माइनस का 3i2 कितना हो गया माइनस का 7i2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाल माइनस का 4i3 ये अपने को किसके बराबर आ गया दैट विल बी इक्वल टू 1। ये अपने को 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो ये अपने को क्वेश्चन नंबर तुम अज्यूम कर लो कितनी आ गई 3। ओके, हुण देखो तुसी इहदे विच i2 ते i3 जिहड़ी आ वो हैगी आ, इहदे विच भी अपने को i2 ते i3 आ गई। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चनस जिहड़ियां आ सैकेंड क्वेश्चन ते थर्ड क्वेश्चन इन्हां नूं आपां जिहड़ा सॉल्व करके ते दो अपने को कोई एक वैल्यू जिहड़ी आ वो आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो किस तरह कैलकुलेट करांगे। ये 2i3 आ, ये 4i3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नूं जिहड़ा है वो तुसीं 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो। कितना मल्टीप्लाई कर दो 2 नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे लिखांगे कितना आ जाऊगा 6i2 -2 × 2 4i3 इज इक्वल टू -6 के बराबर। तो इन्हां दोनों क्वेश्चनस नूं आपां जिहड़ा सबट्रैक्ट कर दांगे माइनस प्लस ते आ भी प्लस हो। ठीक है, तो 7 ते 6 किन्ने हो गए 13i2 माइनस ते आ 4i3 कटी जाऊगी इज इक्वल टू किहदे बराबर 6 ते 1 7। सो i2 जिहड़ा अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा -7/13 एम्पीयर दे बराबर। ठीक है, सो अपने को एक वैल्यू कैलकुलेट होगी i2 इज इक्वल टू -7/13 एम्पीयर की। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां i2 की वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट कर दांगे फर्स्ट इक्वेशन विच, अपने को i1 की वैल्यू जिहड़ी वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सो आ देखो अपने को i2 की वैल्यू इत्थे आपां सबस्टिट्यूट करांगे 4i1 -3 इंटू i2 कितना -7/13 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, ये अपने को आ जाएगा 4i1 -7 3 का कितने हो गए 21 डिवाइडेड बाय 13 ते माइनस माइनस की हो जाएंगे प्लस इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। तो इतो 4i1 की बराबर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 -21/13। ये अपने को एलसीएम 13 आ जाएगा 13 - 21 ये कितना आ गया
माइनस द 8 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। इधर ही 4, ये अपने को I1 इधर जो 4 ये नीचे चल जूगा, 4 ये 8 ना कटिया जाऊगा, कितना आ जाऊगा -2/13 एम्पीयर अपने को आ जाऊगा करंट I1 जड़ा वो आ जाऊगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपने को जड़ा दोनों करंट आ गए I1 ते I2, हुण I3 आपां जड़ा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हुण देखो अपने को I1 प्लस I2 प्लस I3 तिन्ने जड़े करंट मीट करते पे ही ए पॉइंट के उत्ते उन्हां दा सम जड़ा 0 के बराबर ही। I1 ते I2 दियां वैल्यूज आपां इत्थे सबस्टिट्यूट कर दांगे, I1 -2/13, I2 जड़ी आ -7/13 ही, प्लस I3 किदे बराबर आ गया 0 के बराबर, और I3 अपने को किदे बराबर आ जाऊगा 13। आप जड़ा एलसीएम कैलकुलेट कर लांगे, ठीक है, दोनों टर्म्स प्लस दियां हो जाएगियां, 13 आ जाऊगा एलसीएम, ते 2 प्लस 7 कितना हो गया 9/13। I3 की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 9/13 आ गई। तो तिन्ना दियां वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लिया I1 I2 ते I3 दी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैनू उम्मीद है कि तुहानू जिहड़ी आ इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की समझ लग गई होगी, ठीक है। 2 लूप्स लईआं ते तीसरा अपने को ए जंक्शन के उत्ते जिहड़ा किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिता। तिन्नां दियां क्वेश्चनस जिहड़ियां वो आपां जिहड़ियां सॉल्व कर लेनियां आ ते अपने को जिहड़ा जवाब आ जाणगे, तिन्ने करंट जिहड़े मिल जाणगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने को न्यूमेरिकल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y ऑफ द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स शोन इन फिगर। तो आ अपने को नेटवर्क जिहड़ा कि दिता होया, ठीक है। x y अपने को 2 पॉइंट्स आ, इन्हां दे आपां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी आ इस 2 पॉइंट्स दे विचकार, ठीक है। तो ये आपां किस तरह कैलकुलेट करांगे, ठीक है। हुण रजिस्टेंस कैलकुलेट करन दे लई आपां नूं की चाहीदा आ सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। सो करंट अपने को जिहड़ा कि आ वो असीं कैलकुलेट कर लांगे, इहदे विचों सोर्स ऑफ EMF भी चाहीदा। इहदा मतलब इत्थे अपने को कोई सोर्स ऑफ EMF आपां अटैच कर दिंदे आ x ते y जिहड़ा अपने को पॉइंट्स दे विचकार आ सोर्स ऑफ EMF आ गया E अपने को, ठीक है। इनू आपां अटैच कर दिता y टर्मिनल दे नाल, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये अपने को देखो इस सोर्स ऑफ EMF ने I करंट जिहड़ा फ्लो करवाना इस सर्किट दे विचों, I करंट इत्थे पहुंच के A पॉइंट दे उत्ते पहुंच के 2 हिस्सियां दे विच डिवाइड हो जाऊगा। I1 करंट इत्थे आ जाऊगा, 10 ओम दी रजिस्टेंस दे विचों पास होगा, बाकी जिहड़ा कितना रह गया I माइनस I1। तो I माइनस I1 जिहड़ा कि वो 5 ओम दी रजिस्टेंस दे विचों पास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण अगे देखो अपने को B पॉइंट दे उत्ते पहुंच के, ठीक है, हुण आपां इत्थे किस तरह जस्टिफाई करांगे कि कितना करंट इस 5 ओम दे विच लंघूगा ते कितना करंट इस 5 ओम दे विचों जिहड़ा वो पास करूगा, ठीक है। तो ये देखो तुसीं जो सिमेट्री अपनी इधर बन रही है भी A पॉइंट तो 10 ओम वाल करंट जा रहा ते इधरों 5 ओम वाल जिहड़ा करंट जा रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे तरह इस पॉइंट के उत्ते पहुंच के y पॉइंट के उत्ते पहुंच के करंट साडे को फिर जिहड़ा सेम होना चाहिए करंट जिन्ना A पॉइंट के उत्ते ही, ठीक है I, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जो A पॉइंट तो 10 ओम वाल जिहड़ा आ वो अपने को I1 करंट निकलिया आ, तो इसे तरह ही जिहड़ा कि इस 10 ओम विचों जिहड़ा करंट कितना पास होगा I1 करंट ही पास होगा, वो इधर y वाले पासे जिहड़ा कि आऊगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे तरह जे 5 ओम वाले पासे अपने को I माइनस I1 वाला करंट जिहड़ा आया ही, ते इसे तरह इत्थों भी 5 ओम दे विचों I माइनस I1 करंट ही पास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण अपने को इस सर्किट दे विच जिहड़ा एंटर होया करंट, ठीक है, उहदा भी पता लग गया, ठीक है। ते जिहड़ा इत्थों एंटर हो के बाहर निकलिया आ, ठीक है, करंट उहदा भी पता लग गया।
ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ BE ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ I ਮਾਈਨਸ I1 ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ E ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ B ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆਵੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ I1 ਬਣ ਜਾਵੇ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई कि नहीं? इसका मतलब I माइनस I1 ਜਿਹੜਾ करंट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ करंट ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ करंट ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ I1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ करंट ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ I1 माइनस I माइनस I1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को आ जाऊगा I1 माइनस I1 प्लस I1, I1 माइनस I प्लस I1 आ गया अपने को। ये आ जाऊगा I1 ते I1 2I1 माइनस I। तो आपां करंट जिहड़ा आ ये पास करांगे इस 5 ओम दी रजिस्टेंस दे विचों ਜਿਹੜਾ E ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ I1 ਕਰੰਟ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ 2I1 ਮਾਈਨਸ I। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਚੌਫ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆ ਲੂਪ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ABEFA। तो फर्स्ट लूप हैगी आ ABEFA। उस तरह एंटी क्लॉकवाइज करंट आपां जिहड़ा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इधरले पासे एंटी क्लॉकवाइज करंट पॉजिटिव लवांगे। I माइनस I1 5 ओम भी जो लंघ रहा है ये पॉजिटिव हो गया। I माइनस I1 इंटू 5 ओम की नाल रजिस्टेंस आ गई प्लस। ठीक है, अगे अपने को करंट क्लॉकवाइज मिलता पाया 5 ओम के 2I1 माइनस I करंट जिहड़ा पास हो रहा 2I1 माइनस I करंट जिहड़ा पास हो रहा है पर यह जिहड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस करके इनू आपां की लवांगे नैगेटिव। ठीक है, तो नैक्सट अगे जाओ ये फिर अपने को क्लॉकवाइज आ रहा है करंट I1 10 ओम की रजिस्टेंस के विचों पास हो रहा है। ठीक है, ये माइनस आ जाऊगा I1 इंटू 10। ठीक है, ये कोई सोर्स ऑफ EMF अटैच नहीं है इस करके ये किहदे बराबर आ जाऊगा टोटल 0 के बराबर आ जाऊगा। इनू आप सॉल्व कर लांगे 5I माइनस 5I1 माइनस 2 इंटू 5 10I1 माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस 5I तो माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, I वाली टर्मा देखो 5 ते 5 10I ये होगी। I1 वाली देखो 10 10 20 ते अपने को 5 25 माइनस 25I1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये 5 आप कॉमन कट लांगे 2I1 माइनस 5I तो 2I माइनस 5I1 के बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हुण आपां नूं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करन दे लई आपां नूं EMF चाहिए है। इस करके आपां जिहड़ी है सैकेंड जिहड़ी लूप लवांगे उहदे विच EMF जिहड़ी है वो होनी चाहिए है। ठीक है, इस करके आपां लूप किहड़ी लई AFDYXA। ठीक है, या सिंपल ADYXA AFDYXA लूप जिहड़ी है आपां दूसरी ले ली लूप। इस लूप विच फिर आपां करंट की एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हुण देखो तुसीं अपने को इधर नूं करंट जाऊगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगों अपने को I1 करंट जिहड़ा 10 ओम की रजिस्टेंस विचों पास हो रहा है ये अपने को क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब माइनस I1 इंटू 10 आ गया। ठीक है, अगे नैक्सट देखो इधर ना होगा अगों भी करंट जिहड़ा क्लॉकवाइज आ रहा है इस करके वो भी माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस 5 ओम दी। ठीक है, ये भी अपने को जिहड़ा क्लॉकवाइज ही इस करके नैगेटिव आ गया।
इक्वल टू EMF अपने को EMF की कर रही है करंट किधरले पासे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच कट रही है ठीक है इस करके ये भी EMF कितनी आऊगी माइनस की। ओके स्टूडेंट्स क्लियर होगी ये गल। हुण देखो -10I1 -5I ते प्लस हो जाएगा +5I1 इज इक्वल टू -E दे बराबर ठीक है। तो इथों माइनस जिहड़ा आपां कॉमन कढ लांगे ये माइनस वाली ही आ भी प्लस दी होगी या प्लस वाली ही ये माइनस दी होगी ठीक है। तो ये माइनस ते माइनस जिहड़े आपस में कैंसल हो गए तो ये अपने को I1 ते I1 ठीक है ये दो रकमां 10 विचों 5 निकल गए किन्ने आ गए 5I प्लस 5I1 आ गया इज इक्वल टू E दे बराबर। ओके स्टूडेंट्स क्लियर होगी ये गल। तो ये अपने को जी सैकेंड इक्वेशन आ गई दूसरी इक्वेशन बन गई E दे नाल। ओके स्टूडेंट्स समझ लग गई है। देखो स्टूडेंट्स अपने को आ जी टर्म है सैकेंड ये भी I ते I1 विच आ गई फर्स्ट इक्वेशन भी I ते I1 की टर्म दे विच हैगी है ठीक है। तो इथों आपां I1 जी है पहला कैलकुलेट करांगे ते इहदे विच सबस्टिट्यूट करांगे। तो ये अपने को -5I1 इथों किदे बराबर आ जाऊगी -2I दे और माइनस से माइनस कैंसल हो जाएंगे I1 अपने को कितनी आ जाऊगी 2 डिवाइडेड बाय 5I के बराबर आ जाऊगी ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये I1 की वैल्यू आप इतने सबस्टिट्यूट कर देंगे सैकेंड में ये अपने को इक्वेशन बन जाएगी 5I प्लस 5 टाइम्स I1 कितनी 2/5I इज इक्वल टू E के बराबर आ गई ठीक है स्टूडेंट्स। आ 5 ते 5 जिहड़े कि आपस में कैंसल हो जाएंगे 5 ते 2I जिहड़ा ये कितना आ जाऊगा अपने को 7I दे बराबर आ जाऊगा। सो E की वैल्यू साडे को कितनी आ जाऊगी 7I दे बराबर आ जाऊगी। ओके स्टूडेंट्स इन्नी समझ लग गई। ये E की वैल्यू देखो आप इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे अपने को E की वैल्यू किहदे बराबर आ गई 7I डिवाइडेड बाय टोटल करंट कितना सर्किट विचों पास हो रहा ही I आ गया I दे नाल I जिहड़ा अपने को कैंसल हो गया ये अपने को 7 ओम की जिहड़ी आ वो रजिस्टेंस आ जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने को जिहड़ी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इस दो पॉइंट्स दे विचकार एक्स वाई दे विचकार जिहड़ी आई है वो कितनी आई आ 7 ओम के बराबर ठीक है स्टूडेंट्स क्लीयर होगी गल। तो सिंपल जिहा न्यूमेरिकल सी बस एको एक टैक्नीकल गल सी जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां दस दित्ती भी 5 ओम के रजिस्टेंस विचों कितना करंट फ्लो होगा वो तुहानूं पता लग गया किस तरह आपां कीता। फिर दो लूप्स ललियां एक आ अंदर वाली ते एक आ जिहड़ी की आ EMF वाली। तो दोनों तो आपां जिहड़ा की आ कैलकुलेट कर लिया आपां EMF नूं ठीक है। EMF जिन्नी आई टोटल करंट की टर्म दे विच वो आपां सबस्टिट्यूट करती रजिस्टेंस दे एक्सप्रैशन दे विच अपने को जिहड़ा रिजल्ट आ गया कितना 7 ओम के बराबर ठीक है। रजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट हो। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो अपने को न्यूमेरिकल 4 रजिस्टेंसेस P इज इक्वल टू 5 ओम Q इज इक्वल टू 6 ओम R इज इक्वल टू 50 ओम एंड X इज इक्वल टू 60 ओम आर कनेक्टेड इन द 4 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। सो 4 आर्म्स जिहड़ियां अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज दियां उन्हां दे उत्ते आ इन्ने इन्ने ओम दियां रजिस्टेंस जिहड़ियां वो अटैच है अपने को ठीक है। If the cell of EMF 1.5 volt and negligible resistance is connected across the bridge, ये अपने को EMF 1.5 वोल्ट दी इस ब्रिज दे अक्रॉस आपां कनेक्ट कीती हुई आ ते कैलकुलेट द करंट इन द आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सेल। तो आपां जिहड़ा करंट कैलकुलेट करना आ ठीक है ये आर्म्स दे विच व्हीटस्टोन ब्रिज दियां ते सैल दे विचों कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपां कैलकुलेट करना इस न्यूमेरिकल दे विच ठीक है स्टूडेंट। तो सब तो पहला जरूरी आ भी जदों भी अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज का जिहड़ा न्यूमेरिकल आउंदा आ इहदे विच असीं पहला चैक करना आ भी ब्रिज जिहड़ा वो बैलेंस हैगा आ कि नहीं हैगा। सो ब्रिज जिहड़ा उहनूं बैलेंस वेखण दे लई चैक करन दे लई आपां कंडीशन लाउने आ बैलेंस ब्रिज दी अपने को की हुंदी आ P/Q इज इक्वल टू R/X दे बराबर। तो देखो अपने को P की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू अपने को 6 आ गई
इज इक्वल टू आर जी 50 आ डिवाइडेड बाय 60 जी एक्स आ गई। ठीक है, सो 5/6 किहदे बराबर आ गया, 5/6 के बराबर आ गया। इसका मतलब की आ कि अपने को ब्रिज की आ बैलेंस आ ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मीनस भी को बी ते डी पॉइंट आ ये सेम पोटेंशियल के उत्ते आ, तो ये अक्रॉस अपने को कोई करंट फ्लो नहीं होगा, गलवैनोमीटर कोई भी डिफ्लैक्शन जी नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लगी। हुण देखो आपां करंट कैलकुलेट करना है, सो ये अपने को सपोज कर लो भी आई करंट उस अपने को सर्किट दे विच फ्लो हो रहा है, इस ए पॉइंट के उत्ते पहुँच के करंट डिवाइड हो जाता, I1 इधरले पासे चल जूगा 5 ओम वाली रजिस्टेंस वाल, इस तरह जोड़ा कि I2 करंट इस अपने को 50 ओम की रजिस्टेंस वाल फ्लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इत्थे जोड़ा कि एस बी डी के क्रॉस अपने को कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस करके जोड़ा कि I1 करंट वो क्यू रजिस्टेंस के विचों फिर पास करूगा, इस तरह अपने को एक्स रजिस्टेंस विचों करंट फिर कितना पास करूगा, I2। ठीक है, सो I1 ते I2 फिर सी पॉइंट के उत्ते जाके मिल जाएंगे, करंट फिर जोड़ा कि आई अपने को फ्लो होने लग पऊगा इस सर्किट के विचों। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लग गई। हुण देखो अपने को नैक्सट इहदे विच अपने को आपां लूप एक कंसीडर कर लांगे, किहड़ी ADBA लूप कंसीडर कर ली। इस लूप दे विच आपां किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करांगे, अपने को की होगा एंटी क्लोकवाइज करंट आपां पॉजिटिव लेना है, AD आर्म विचों करंट जिहड़ा एंटी क्लोकवाइज पास हो रहा I2 इंटू रजिस्टेंस आ गई 50, एस गलवैनोमीटर विचों कोई करंट नहीं पास होना, I1 करंट फिर 5 ओम की रजिस्टेंस विचों पास हो रहा पर क्लोकवाइज डायरैक्शन विच, सो ये अपने को I1 इंटू 5 आ जाऊगा इज इक्वल टू होर कोई सोर्स ऑफ जोड़ा अपने को EMF इस लूप में मौजूद नहीं है, इस करके किहदे बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई EMF। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को आ जाऊगा 50I2 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0, और इनू आप ले लांगे 10I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन जी ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। हुण सैकेंड जी इक्वेशन है वो आप इतों कैलकुलेट करांगे, ये आ भी लूप अपने को बाहर दी हैगी आ। ठीक है, करंट ये आई जिहड़ा फ्लो हो रहा है, ठीक, किहड़ी लूप ADCMNA, किहड़ी लूप ADCMNA। इस लूप दे विच फिर आपां किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करांगे, I2 करंट जिहड़ा क्लोकवाइज डायरैक्शन दे विच जा रहा है। ठीक है, सारा ही करंट जिहड़ा क्लोकवाइज डायरैक्शन दे विच है। ठीक है, तो ये अपने को I2 माइनस का आ गया इंटू 50, फिर अगे I2 करंट जिहड़ा की है अपने को माइनस I2 इंटू 60। ठीक है स्टूडेंट्स, नाल अपने को जिहड़ा I करंट रजिस्टेंस कोई है नहीं है, इसका मतलब ये अपने को सीधा EMF के टोटल के बराबर आ जाऊगा 1.5 दे। ठीक है, क्योंकि ये अपने को सोर्स ऑफ EMF क्लॉकवाइज करंट दे विच जिहड़ा ये करंट फ्लो करवा रहा है, इस करके ये नैगेटिव आ जाऊगा। ठीक है, कितना आ जाऊगा, माइनस 110I2 इज इक्वल टू माइनस 1.5। तो I2 कितना आ जाऊगा अपने को 1.5 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनू जिहड़ा कि आप सॉल्व कर लांगे, ये अपने को आ जाऊगा 3/220 एम्पीयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये I2 की वैल्यू आप इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे, अपने को कितना आ जाऊगा फ्रॉम 1 अपने को I2 की वैल्यू 10 इंटू I2 कितना है 3/220 माइनस I1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो ये अपने को -I1 किहदे बराबर आ जाऊगा -3/22 माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे। I1 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 3/22 के बराबर आ जाऊगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अपने को I1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, I2 की भी वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो टोटल करंट कितना आऊगा I = I1 + I2। ठीक है, टोटल करंट की वैल्यू कितनी आऊगी, तो ये आप सबस्टिट्यूट कर देंगे। I1 आया ही 3/22 प्लस I2 जिहड़ा 3/220। ठीक है, तो ये अपने को एलसीएम कितना आ जाऊगा 220। ठीक है, 22 है, ऊपर आ गया 30 + 3। ठीक है, सो 30 + 3 कितना हो जाएगा टोटल 33 डिवाइडेड बाय 220। तो ये अपने को कितना जो है 11 नाल आपां जिहड़ा इनू कर दईए कट दईए 3 आ गया ऊपर, थले आ गया 220। सो 3/20 एम्पीयर अपने को टोटल करंट वो फ्लो होगा एस सर्किट दे विचों। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने को न्यूमेरिकल फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट। सर्किट दे विच अपने को एक एक्स जिहड़ी आ रेजिस्टेंस आ अननोन आपां इहदी वैल्यू डिटरमिन करनी आ। इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सैक्शन AO, AO सैक्शन है, इहदे विचों कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रान बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी विचों कितना इस सर्किट ने करंट ड्रा किया वो आपां कैलकुलेट करना। एंड नगलीजिबल इंटरनल रजिस्टेंस, मतलब 6 वोल्ट जिहड़ा अपने को EMF जी अटैच हुई है वो इंटरनल रजिस्टेंस नगलीजिबल हैगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को जी सर्किट डायग्राम जी दी हुई है। ठीक है, जे तुसी इनू सर्किट डायग्राम नू ध्यान दे नाल देखो, ठीक है, तो ये अपने को सर्किट डायग्राम बिल्कुल उस व्हीटस्टोन ब्रिज वांगू नहीं नज़र आ रही इस तरह, या 2 ओम की रजिस्टेंस इधरले पासे, 4 ओम की इधरले पासे आ गई। ठीक है, नीचे 3 ओम की इधरले पासे, एक्स जी इधरले पासे, तो विचकार जी आ ए ते ओ दे उत्ते। ठीक है, ए आ बी आ गई। ठीक है, तो आ जड़ा पॉइंट सी आ गया। ठीक है, तो ए ते ओ पॉइंट के विचकार किन्नी 10 ओम की जी एक रजिस्टेंस वो लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज वांगू ही आ गया। तो BC के क्रॉस जिहड़ा अपने को बैटरी अटैच हुई है 6 वोल्ट की, नाल अपने को रजिस्टेंस कितनी है 2.4 ओम, बिल्कुल उहदे वांगू। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कोई करंट जिहड़ा इहदे विचों फ्लो नहीं हो रहा AO सैक्शन दे विचों। ठीक है, इट मीनस कि यह ब्रिज की आ बैलेंस्ड है। ठीक है, सो बैलेंस ब्रिज वास्ते फिर वही कंडीशन लगूगी P/Q = R/X के बराबर। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है 4, R की वैल्यू 3, X आपां डिटरमिन करना है। ठीक है, अननोन रजिस्टेंस आपां वैल्यू जी वो वेखनी है। आ 2 के नाल 2 कैंसल हो गया, X इधरले पासे आ गया, 2 जिहड़ा 3 नाल क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6 ओम की अननोन रजिस्टेंस अहीं डिटरमिन कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्नी गल दी समझ लग गई। हुण आपां टोटल करंट देखना है भी इस सर्किट दे विचों कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां की करदे हां इहदे विच आ जी 10 ओम की रजिस्टेंस इहदे विचों करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा, इनू आपां रजिस्टेंस नू जिहड़ा मतलब कि हुई ना हुई ये एक बराबर है। ठीक है, आ 2 ओम की रजिस्टेंस ते 4 ओम की रजिस्टेंस ये दोनों की होणगियां आपस विच सीरीज़ विच होणगियां। इस तरह आ 3 ओम की ते आ एक्स जी आपां किन्नी कैलकुलेट की 6 ओम की, ये अपने को रजिस्टेंस जिहड़ियां ये भी सीरीज़ विच होणगियां। ठीक है, सो उपरलियां अपने को रजिस्टेंस जिहड़ी आ 4 ते 2 6 जी अपने को सीरीज़ विच ही ये एक रजिस्टेंस आ गई R1, नीचे अपने को दूसरी रजिस्टेंस सीरीज़ विच है दोवें 6 ते 3 9 हो गई। ठीक है, तो टोटल रजिस्टेंस इन्हां दी कितनी आ गई 9 ओम। ठीक है, तो उपरली रजिस्टेंस की बन गई 6 ओम की। ठीक है, नीचे वाली रजिस्टेंस कितनी होगी 9 ओम की। इनू आप इस तरह लिख सकते भी आ देखो आ 9 ओम की बन गई। ठीक है,
इधरले पासे जी आ उपरले पासे किन्ने दी बन गई है 6 ओम दी। ठीक है, तो ये 6 ओम ते 9 ओम दोनों की आ गई पैरल दे विच आ गई। ठीक है, तो पैरल दे विच अपने को टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप किस तरह फाइंड आउट करांगे 1/6 प्लस 1/9। तो 1/R1 प्लस 1/R2 अपने को आ गई। ठीक है, तो ये अपने को एलसीएम ਇਹਦਾ कितना आ जाऊगा 6 ਤੇ 9 ਦਾ ਆਪਾਂ कैलकुलेट कर लांगे। 6 ਤੇ 9 ਦਾ एलसीएम कितना आ जाऊगा 3 ਇਹ 2 आ गया 3 3 ਦਾ 9। ठीक है, तो 3 दूनी 6 ਤੇ 18 18 अपने को एलसीएम आ गया। तो 3 ऊपर आ गया प्लस 2 नाल ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया 5/18। ठीक है, और आर पी जरा अपने को कितना आ जाऊगा 18 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इनू कट दो कितना आ जाऊगा अपने को 5 ते 15 5 ते 15 हो गया तो 3 बचे। ठीक है, तो ये अपने को 6 5 30। ठीक है, तो 3.6 ओम जरा अपने को रजिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये हुण ये अपने को आर पी जी इस कंबीनेशन की जी रजिस्टेंस आई आ। ठीक है, सो ये अपने को नाल सर्किट में की अटैच आ 2.4 ओम की रजिस्टेंस। ठीक है, तो अपने को सारे सर्किट की जी रजिस्टेंस कितनी आ जाऊगी आर पी प्लस आर प्राइम कितनी है 2.4 ओम 3.6 प्लस 2.4 कितनी होगी। ठीक है, 3 ते 3 6 ओम की जी अपने को रजिस्टेंस आ गई। इफेक्टिव रजिस्टेंस सारे सर्किट की जी कितनी आ गई 6 ओम की। ठीक है स्टूडेंट, हुण करंट कितना फ्लो होगा आई करंट किहदे बराबर हुंदा ई डिवाइडेड बाय आर टोटल ईएमएफ बटा टोटल जी रजिस्टेंस। ठीक, तो 6 वोल्ट की अपने को ईएमएफ बटा 6 ओम की रजिस्टेंस ये कटे जाएंगे। 1 एंपीयर का करंट वो फ्लो होगा सर्किट दे विचों। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। सो ये अपने को सिंपल जा एक न्यूमेरिकल सी। ठीक है, तो ये आप करंट कितना सर्किट के विचों ड्रा किया जा रहा है। ठीक है, वो आप कैलकुलेट करना ही भी अपने को करंट कितना आ गया 1 एंपीयर का। ठीक है स्टूडेंट, तो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये अज दे न्यूमेरिकल्स जिहड़े आ वो जरूर समझ लग गए होणगे। तो थैंक यू वेरी मच।